gets caught in the crossfire. Hello guys, how are you? I hope you all are fine. Today we are discussing about the most favorite question of all the hospital, whether it is 100 bedded hospital or 200 bedded and 500 bedded. The all hospital has a favorite question is what you will do in the emergency condition when your patient is getting intubated. जब भी आपके पेशेंट को इंटूबेट करना होता है वो एमरजेंसी कंडीशन को आप कैसे हैंडल करते हो. देयर इज़ अ मैनी डाउट ऑफ ऑल द फ्रेशर स्टूडेंट, सो ओनली बिकॉज ऑफ दिस I make this video only for the fresher student. In this video I'm telling you about what we need to do in the emergency condition when you need to intubate your patient. What the things that you need to be ready for the intubation, how you can ready the ventilator, how you can ready the bed of the patient, how you can ready the suction machine, how you can check suction machine whether it is working or not, and all these things which are coming in the mind of all the fresher student. So that's why this video is really helpful for all the fresher students who are going for the interview. This question is very favorite question of all the hospital, and I hope in your next interview they may ask this question and you cannot hesitate during answer of this question. So let's talk about the procedure, whole procedure, what we need to do during the intubation. So guys, this is not a very difficult task, it is a very easy task. अगर आपको भी यही चीज़ में दिक्कत है कि आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको क्या ऐसे वाला क्वेश्चन पूछेंगे और आप सोचोगे कि यार हाउ कैन आई गिव द राइट आंसर. सो टुडे यू हैव टू सी दिस वीडियो. आफ्टर दिस वीडियो आप सबको मतलब बहुत ही ईजी हो जाएगा इस चीज़ का आंसर करना. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ऑल द कंडीशन in which we need to get the patient intubate. So our first condition is respiratory failure. If your patient has a respiratory failure, whether it is upper respiratory, it is lower respiratory failure, if your patient is going to the respiratory failure, then we need to immediate intubate the patient. In the respiratory failure, the main things is that there is some changes in the ABGs like hypoxemia or hypercapnia. Hypoxemia is when the patients have desaturate, and the hypercapnia is when the patient has high PCO2 concentration in the blood. और अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो हमें पेशेंट को इंटूबेट करना होता है. सो सेकंड थिंग इज रिड्यूस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. when the patient has reduced the level of consciousness, for example a patient has low GCS lower than 10, then we need to intubate the patient immediately. If there are any rapid changes in the mental status, then also we need to intubate the patient. If there is any head injury and airway injury, then also need to immediate intubate the patient. The most emergency situation is created when your patient is getting aspirate. एस्पिरेट जब भी पेशेंट करता है तो जो भी रिगर्जिटेशन के साथ जो भी उनके पेट में फ्लूइड होता है, जहाँ पानी जो भी उसने खाया होता है वो सारा एयरवे के अंदर चला जाता है, तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है. तो इसके बाद हमें पेशेंट को इंटूबेट करना पड़ता है एमरजेंसी कंडीशन में. द मेन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड दैट व्हेन योर पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ, आपका पेशेंट जब ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इंजरी हो या कुछ भी हो, जहाँ मतलब एयरवे इंजरी है, पेशेंट आपका लो जीसीएस हो गया है, मेंटल स्टेटस बिगड़ गया है, जनरल एनेस्थीसिया देना या कुछ भी है, मतलब जब भी आपको पेशेंट इंटूबेट करना है तो मेन यही देखना है कि अगर पेशेंट इफ़ द पेशेंट अनएबल टू ब्रीथ, पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें पेशेंट को इंटूबेट करना होता है. एंड द लास्ट थिंग इज समटाइम वी नीड टू इंटूबेट द पेशेंट इलेक्टिवली. For example, when we plan for the surgery, for example, we plan for the surgery of CABG, bypass surgery. When we need to bypass surgery of the patient, then we also need to get intubate the patient. And any some major surgery, we need to intubate the patient electively. So friend, let's talk about the things that you need to be ready. What the equipment you need to getting ready for the intubation. What is the medicine keep the bedside while intubation. How you ready your ventilator. How you ready your suction catheter, suction machine. How you need to check your suction machine. All these things we have to discuss in this video. Let's start the video. In emergency condition, you just take this emergency trolley to the patient's bedside. In the emergency trolley, all things which you need during emergency intubation, all these things are kept in this emergency trolley. You have to check your laryngoscope and your blades.
next thing is surgical gloves, and next thing is ET tube. All the numbers of ET tube are there, 8.5, 8, 7.5, 7. और एमरजेंसी कंडीशन में आप कौन सी यूज़ करते हो वो भी आपको पता है। अगर फीमेल है तो 7 या 7.5 हम यूज़ करते हैं, मेल है तो 7.5 या 8 हम यूज़ करते हैं। देन सक्शन कैथेटर हमारे यहाँ पे है, ओके। देन वेंटिलेटर ट्यूबिंग हमारे पास है, देन एम्बू बैग हमारे पास है, देन ये वैक्यूम सक्शन है वो हमारे पास है। मतलब हमारे पास सब चीज़ इस एमरजेंसी ट्रॉली में हमारे पास होती है। तो आपको क्या करना है, एमरजेंसी कंडीशन में आपको जैसे ये ट्रॉली उठानी है, पेशेंट के पास जाना है, ठीक है। इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। जब भी आप पेशेंट इंटूबेट करते हो तो उस टाइम पे जो भी आपको चाहिए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन दिस एमरजेंसी ट्रॉली। सो नेक्स्ट डॉक्टर आएगा, इंटूबेट करेगा, हो गया। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या चीज़ देखनी है, जब भी हम इंटूबेट करते हैं तो सबसे पहले इंटूबेशन के लिए रेडी आपको क्या करना है, ये सब आपके पास है, ट्रॉली होती है, ठीक है। उसमें क्या क्या सामान होता है वो आपको देख लेना है। लेट्स सपोज हियर द पेशेंट इज़ हियर व्हाइल द इंटूबेशन, यू नीड टू बी स्ट्रेट द बेड एंड रिमूव दिस हेड रेल ड्यूरिंग द इंटूबेशन, ओके। देन उसके बाद मॉनिटर पे आपका सब चल रहा होता है। दैन उसके बाद जो आपका वेंटिलेटर है वो आपको रेडी रखना होता है जब भी इंटूबेट पेशेंट को करना है, ठीक है। आपको अपना वेंटिलेटर चेक करना है। देन वेंटिलेटर की जो ट्यूबिंग होती है ऑक्सीजन वाली और मेडिकल जो एयर होती है उसकी, तो ये ऑक्सीजन वाली आपको चेक करनी है अच्छे से, ठीक है। पेशेंट को लगा हुआ है या नहीं ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो आपका पोर्ट सही से लगा होना चाहिए। जो दूसरी जो मेडिकल एयर होती है वो आपकी लगी होनी चाहिए, ओके। देन आपका जो सक्शन है वो आपको चेक करना है, सक्शन प्रेशर सही से चल रहा है या नहीं। तो सक्शन भी हमारी बिल्कुल ठीक चल रही है। तो ये सब चीज़ें होती है जो हमने चेक करनी होती है ड्यूरिंग इंटूबेशन। तो आपका पेशेंट जब हो जाता है तो देन हमने स्टार्ट कर देना होता है वेंटिलेटर। तो जो वेंटिलेटर की सेटिंग्स हैं वो जो सब डॉक्टर ने करनी होती है, वो हमारा काम नहीं होता है। तो उसके बाद पेशेंट आपका इंटूबेट हो गया। इंटूबेट होने के बाद आपको जस्ट पेशेंट को सेटल करना होता है। तो सेटल क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें, पेशेंट का हेड अप कर देना है, ठीक है, वो सब आपको कर देना है। तो बस यही होता है इंटूबेशन के दौरान। तो आपको यही सिनेरियो याद रखना है कि कैसे आप पेशेंट को इंटूबेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको रेडी करनी होती है ड्यूरिंग इंटूबेशन। तो यही सब क्वेश्चन में पूछते हैं, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। तो बस ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जो फ्रेशर है उनको ज़्यादा थोड़ा देखने की ज़रूरत है, और जो एक्सपीरियंस है वो तो कर ही लेंगे हैंडल। खैर, सो फ्रेंड्स, व्हेन योर पेशेंट इज़ गेट इंटूबेटेड, then the two procedure is most common after the intubation, like the first is Ryle's tube insertion and the second is CVL insertion. So ये दोनों जो प्रोसीजर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करते हैं, क्या क्या उसके लिए रेडी करना है, मतलब उसके लिए आपको क्या क्या रेडी करना होता है। तो उसका जो प्रोसीजर है थोड़ा अलग है, तो ये इंटूबेशन का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा अलग है। तो आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो CVL या राइल्स ट्यूब के बारे में आपको नहीं पूछते, मोस्टली यही क्वेश्चन पूछते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ये वो क्वेश्चन पूछा है कि सर जब भी हम जाते हैं तो हमसे वो पूछते हैं कि एमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को इंटूबेट करना पड़े तो आप कैसे करोगे, क्या करोगे, क्या क्या आपको रेडी करना है। तो वो मैंने आपको फिज़िकली दिखा दिया है, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे होती है। वेंटिलेटर मैंने आपको दिखा दिया, उसके पोर्ट आपको मैंने दिखा दिए कि क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है। तो यही मेन चीज़ें जो आपको याद रखनी है, और ज़्यादा कुछ वो नहीं है। तो बस पेशेंट को इंटूबेट करने का ज़्यादा काम नहीं है, बस 5-10 मिनट का काम होता है, वही जल्दी जल्दी करना है। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस यही था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल लगी होगी और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होगी। इफ़ यू गाइज़ रियली सेटिस्फाई विद दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।